رب العالمين انسان گژھن وار روزُن کینٛہہ چھُنہٕ رب العالمین انسان گژھن وار روزُن رب العالمین गूसू गांव के मुकामी लोगों ने कहा कि हुकाम ने 2014 के सैलाब से कोई सबक नहीं लिया, जिसमें उनकी 6 कनाल बागाती जमीन बह गई थी और मौजूदा सैलाब में भी उनकी 6 से 12 कनाल बागाती जमीन मुतासिर हुई है। उन्होंने अपने नुकसानात के लिए फौरी राहत और रोमशी नाला के किनारे पर एक मजबूत बंद तामीर करने का मुतालबा किया ताकि पानी की सतह बढ़ने पर उनकी जमीन मुतासिर न हो। अहले इलाका ने मजीद कहा, कल से हमने यहाँ कोई रेवेन्यू ऑफिसर नहीं देखा, यही सूरत हाल है, इसी तरह इनकी निगरानी की जा रही है। एमएलए राजपुरा ने गूसू गांव का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि इंतजामिया तरजीही बुनियादों पर नुकसान का तखमीना लगाएगी और फौरी राहत का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रोमशी नाला पर बंद तामीर किया जाएगा और गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा, जिन्होंने मुतासरा इलाके का दौरा किया, ने कहा कि तकरीबन 60 से 70% नुकसान हुआ है क्योंकि फसलें तबाह हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा नुकसान का तखमीना लगा रहा है और मुआवजे के लिए एदाद शुमार आला हुकाम को भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर से ऋषि इरशाद की खास रिपोर्ट। بوموار illegal mining mining ڈیمو سہت تم دشوے بیس بتی بیس تھی یہ کرو یہ تمن ست وچو یہ رومش کس شکل یہ کپر ہیکو نت نمبر دم بنڈ یہ کریڈ بنڈ یم کریڈ بنڈ کرنو تمے سات فلڈ کنٹرول جی تمے سات جانو یت قدم دمو یہ دمو مزس تھی تم تہ وچن انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو کت پہ ہیکو کر تمے کریڈ بنڈ جانو تہ دمو یہ زمین اس یہ ام بغیر 2014 مجھ آج دمو تہ تس پہ بن کہ گھس پروٹیکٹ یہ گھس سہلاب کرو خطرہ واتن ایسے گھن یوت نقصان کی اگر نم ڈوزر تک ٹریکٹر مز مطلب بار بار گئی لڑائی کر تمن سن وونک ات یہ گھس مشکل اگر ات آب یہ گھس مشکل وون کہیں مطلب ژور لٹ آئی میون مول تہ آئی میون بیم تہ آئی میون بین تہ آئی ہتہ لٹہ آئی تم یہ مرحلہ کن بنی تم تم پاٹی واٹی تم تی نہیں تم کنال تقریباً کل گئی تقریباً کل 50 مان انکم زیادہ یہ یہ پہ نظر بیس مان بیم سہ مان کیا انکم کہین یا گورمنٹ مان یا کیا ملازم ولازم کہ نم برونٹے پائی دپان خبر اشر ما آسن ونان مان پہ باسس کہ تم اشر ما یوتن یوتن وچھا یا تھی پان وچھو یتن کیا گومت۔ جی میرا نام شکیل الرحمان ہے، میں ڈسٹرکٹ ہارٹیکلچر آفیسر ہوں یہاں پلوامہ میں۔ جو یہ بارشوں کا سلسلہ 3-4 دن رہا اس سے جو ہے یہاں فلڈ کی ایسی سچویشن ہو گئی کہ دریا نے اپنا رخ ہی بدل دیا۔ جہاں سے دریا چل رہا تھا وہاں اس ٹائم نہیں چل رہا ہے، کیونکہ اس باغ میں پہلے بھی وزٹ کر چکا ہوں تو لگ نہیں رہا کہ ہم اس باغ میں اس وقت چل رہے ہیں۔ اتنا جو ہے دریا نے اپنا رخ بدل کر دریا باغ کے بیچوں بیچ چل رہا ہے۔ تو نقصان کے حوالے سے اگر یہ کہیں گے کم سے کم 6-7-8 کنال زمین جو ہے اس ٹائم پورا دکھ نہیں رہا ہے کہ کہیں باغ کبھی لگا ہے۔ اگر ہم اس ٹائم پیڑوں کی سچویشن دیکھیں گے، بڑے اور لدے ہوئے پودے ہیں، پھل تیار ہے، یہ ایک ناگانی آفت ہی کہیں گے۔ کم سے کم کسانوں کے 8 کنال زمین 6-7 کنال زمین کہیں گے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اور پیڑوں کی اگر ایج ہم بولیں گے کم سے کم 25-30 کے سال کے قریب کی یہ پیڑ ہے، جو ہمارا ہائیسٹ یلڈنگ ایج ہوتی ہے پلانٹ کی، یہ اسی ایج گروپ کے پلانٹس ہیں۔ تو کسان جو ہے اس وقت بڑی پریشانی میں اور پینک ہو رہا ہے۔ دیکھیے ڈپارٹمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لاس اسیس کرتے ہیں کسانوں کو اس آفت سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ جو ہماری ٹیم فیلڈ عملہ جو ہے 2-3 دن سے یہاں آ رہا ہے، میں خود بھی آیا ہوں، وہ ہم نے بنا رکھا ہے جو ہم ڈی سی صاحب کے کو سپرد کریں گے
फिर गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट जो है इनकी भरपाई करेंगे, ताकि ये गरीब आवाम जो है, जिनके अधूरे सपने इस बाग पर लगे थे, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके इस बाग को लगाए थे पैसे, तो उम्मीद थी उनको कि ये बाग जो है हमारे पूरे जो अधूरे सपने हैं पूरे करेगी, लेकिन अल्लाह का मंशा कुछ और था। लेकिन गवर्नमेंट भी जिंदा है, उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट जो है उनकी पूरी भरपाई करेगी। पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिशें हो रही थी और जिससे जो ये नदी नाले है, जिसमें हमारी रोमशी नाला आता है, रंबियारा आता है, सासारा आता है, जो खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहती हैं, उनमें तुगयानी आ गई और सैलाबी सूरत हाल उन्होंने अख्तियार किया है। लेकिन खुदा ताला से जो कल रब ने हमारी सुनी है, लोगों की सुनी है कि कल जो बारिशें रुकी है, अगर बारिशें लगातार जो कल तक अगर आज तक होती रहती बारिशें तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। आपने देखा ये जो गुसू एरिया है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं हुआ है तो ज्ञानी से सैलाब से इन नालों में ये सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ बूसू में हुआ है, क्योंकि उनकी जो अपनी जो मिल्कियती जमीन है, जिसमें ये सेब के दरख्त आप खुद भी देख रहे थे कि एक एक सेब के दरख्त में से कम 40 क्रेट 30 क्रेट 25 क्रेट सेब उतरने की हमें तौका थी। लेकिन ये जो उनके कहने के मुताबिक 200 दरख्त ऐसे ही सेब के 250 दरख्त इस सैलाब ने अपने साथ बहा कर ले लिए हैं। और आप जमीन की सूरत हाल भी देख रहे हैं, जो नाला है, नाला तो पार था, अब चूंकि जो पानी आ गया, पानी की वजह से यहाँ आ गया। ये वही जो मैं चलाता आ रहा हूँ आज तक कि इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। उस इलीगल माइनिंग की वजह से चाहे रंबियारा था, चाहे नाले रोमशी था, जो पानी का बहाव है उन्होंने दूसरे रास्ता अख्तियार किया था। मैंने आपसे भी बहुत बार बात की कि अगर सैलाबी सूरत कभी भी इस नालों में कभी भी पैदा हो जाएगी तो जो न सिर्फ इन बागात को खतरा है बल्कि आबादी को भी खतरा है। जो इलीगल माइनिंग हो रही है, मैं आपकी चैनल की वसातत से इस वक्त जो हमारा डीएमओ है पुलवामा का, उसे कहना चाहता हूं कि वो फिलफोर जो भी, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे वो मशीन हो, जो जिससे वो यहाँ से वो मटेरियल निकालते हैं, उन पर पाबंदी आयद की जाए और जिस किसी को भी वो देखे उस पर जुर्माना आयद किया जाए, उसको थाने में बंद किया जाए। यहाँ क्रेड बंडिंग हो जाएगी, उस पार भी इस पार भी क्रेड बंडिंग हम करने जा रहे हैं। पोहुआ से लगातार जहाँ तक सोरस है हमारा नाले रोमशी का, इचगोजा से ऊपर, वहां तक क्रेड बंडिंग हो जाएगी, इसका भी और बिडनी नाला का भी, जो हमारी नाला वहां से दूसरा नाला इस रोमशी से मिलता है, इसमें क्रेड बंडिंग हो जाएगी। और इनको जो आज नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह ये भी देखेंगे आइंदा 10-15 दिनों में उनको मुआवजा भी मिलेगा। और दूसरा जो ये प्रोटेक्ट ये लैंड करना है वो प्रोटेक्ट भी हो जाएगा।